अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हुमा खान और आप देख रहे हैं आइज़ ऑन एंटरटेनमेंट सिविल आइज़ के प्लेटफॉर्म पर। और आज हमारे साथ हैं अली सफीना, जो बहुत मशहूर कॉमेडियन, डीजे, ड्रामा एक्टर एंड पाकिस्तान की हस्ती हैं। वेलकम अली टू द शो। Thank you very much, Huma. तो आपकी शुरुआत we'll start with the VJ aspect of it. तो आपने शुरुआत VJ से की थी, उसका थोड़ा Actually, that's not true. Oh, That's it's not not? true. That's We correct. started off, yes, I started off from radio. अच्छा Yeah, basically start to radio se kiya tha. अच्छा So, तो how did you fall into radio? that was purely ek shauq tha, obviously. I wanted to make some extra money, wanted to become popular, wanted to become an actor. And radio was my first point of contact, basically. Just, I could get in touch with people who work for television and all. But this was, back in the time when I was at university almost 15, 16 years ago. A few of my university friends, they used to host a radio show back in Scotland. So, unko maine apna interest वगैरह show kiya tha, and these guys actually motivated me to be on one of the local radio stations in Scotland called Awaz FM. In Scotland? I started working over there. Wow. Yes. I started working over there as a, say, an internee, or maybe I don't know us time pe kya chalta tha, but it was just family for me. Since I was just living alone over there as an international student, and ye ki udhar bahut sare aur nationalities ke log bhi kaam karte the. So it was a eclectic mix of wonderful people, right, who took me on board, gave me the first ever chance to go, live. Your host, I'm sure you'd understand कि वो जो लाल लाइट स्टूडियो की ऑन होती है, ऑन एयर वाली, right. तो उस वक्त दिल का क्या हाल हो रहा होता है और आपकी जुबान कहाँ जाती है. मेरा हाल हो रहा है. You know what I'm saying? Yeah, every single time, it happens like every single time. Yeah. आज तक मेरे साथ ऐसे ही होता है. But ये कि that was my start, basically. Right. अच्छा, तो आपकी टिपिकल देसी स्टोरी मुझे लग रही है. अब you're a mechanical engineer by trade. Yeah, that's right. Mechanical engineering, and that's your profession. तो उसका segue आपने कैसे किया और आपने were your parents supportive of it? Yeah, I mean totally. Without to be honest, आपने जिस तरह कहा है ना कि typical desi story, it is a typical desi story, 110%. But it was just that कि my parents, they were always very supportive. They're still very supportive, mashallah. And ये कि बड़ा एक linear thought process था मेरे वालिद साहब का कि उन्होंने कहा यार देखो, I need to obviously make sure that you guys study, like as in me and my siblings, and you guys are well fed and अच्छे तरीके से तुम लोग को बड़ा करूं और तुम लोग अच्छे ताकि काम कर सको आगे जाके, you're comfortable in your life and all. Right. I was the eldest. So I could see when I finished my bachelor's, I could see कि मेरे बाद मेरा भाई भी है और मेरी बहन भी है, and वो दोनों मुझसे ज्यादा जरा मेहनती मुझे लगते थे. अच्छा. और पढ़ाकू नहीं होते जो जरा ज्यादा पढ़ाकू and अच्छे grades लेने वाले बच्चे. So I was like, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कोई मास्टर्स के लिए pursue भी करना चाहिए, because it was very expensive, Right. and I knew I didn't want to waste time, basically. मैं bachelor's करने के बाद मुझे पता चल गया था कि okay, I want to do something else. Right. So I opted for something that I really wanted to do at that point, which was learn music, or be in a place where people are performing, and so on and so forth. So I had a band as well. I started DJing at that around about that time, and so yeah, typical desi kid story. But ये typical बिल्कुल भी नहीं था. जिस तरह का reaction मेरे parents का था, my Right. parents were like totally I was going to supportive. say, a lot of desi parents, they frown upon the arts and वो समझते हैं कि ये कोई lucrative field नहीं है, but that's amazing कि you were supported. Actually, they did not really give me, ऐसा नहीं था कि कि ओ पैसे बड़े बनते हैं या ओ अमीर हो जाता है आदमी या फिर उसके ताल्लुकात हो जाते हैं, इस तरह की बात नहीं थी. वो बात ये थी कि अच्छा, if you really want to do this, then go ahead and do this. That's amazing. It was as simple as that. Yeah, it was literally as simple as that. मेरी इस चीज पे ज्यादा conversation हुई थी कि जब मैंने university join करनी थी. Once I had done my bachelor's, it was just like 10 minute की conversation where these guys were like, okay, if you want to go, just go ahead.
that you have something to fall back on, right? I think यही होता है कि मतलब एक stability. Yeah, exactly. हाँ बिल्कुल. But I still wish कि मैं engineering university, although my university was one of the best universities, it still is one of the best universities in the entire United Kingdom. And you know, the faculty जिसमें मैं था mechanical engineering की, that was the top notch faculty, and बड़े यानी अच्छे माहौल में मैं पढ़ा था और अच्छा एक qualified engineer बन चुका था. लेकिन it was just कि I couldn't fathom, you know, myself sitting, you know, on a desk for at least 12 hours. Yeah. I'd seen my father do that all his life, you know, and it was a very disciplined life. Nothing that कि मुझे उस पे वो हो, but it was just that कि मुझे नहीं समझ आ रही थी कि यार मैं एक लाइफ देख चुका हूँ, बूब ने ये गुजार दिया, अब मैं भी क्या वही फॉलो करूंगा, sort of thing. Yeah. नेचर होती है ना, हर ज्यादातर आर्टिस्ट की नेचर ये होती है कि दे आर वेरी क्रिएटिव, एंड वो क्रिएटिविटी जब तक आप फुलफिल नहीं करते वो एक डल लगती है, राइट? एंड नॉट एवरीबॉडी फॉर अ डेस्क जॉब. तो आप यू ग्रू अप इन ओमान एंड वहां से फिर आपने माइग्रेट किया, तो यू केम बैक टू पाकिस्तान. उसका थोड़ा मुझे आप बताएं. I mean, in Oman, my family is still in Oman. You know, right. My father and mother, we've been living over there for the last 40 years now, 45 years now. And education जो England और ये Scotland वगैरह की थी, ये तो obviously for क्या कहते हैं, वो आला तालीम हासिल करने के लिए नहीं जाते. Right. So basically, I went for आला तालीम के असूल के लिए. उसके बाद वापस अपने मुल्क तो लौटना ही था. वो वापस लौटे, एंड लौटने के बाद बस पाकिस्तान ने मुझे मेरी आइडेंटिटी दी, मुझे मेरा घर दिया, मेरा नाम जो है वो पाकिस्तान से बना है, वो पाकिस्तान से और ज्यादा जुड़ गया. तो यू नो इट वाज वेरी, अब मैं सोचता हूँ बहुत सरील लगता है मुझे कि किस तरह एक मैं नहीं उठ के आ गया था. और उस टाइम पे बहुत अच्छा वक्त था यार. आप इस चीज का अंदाजा लगाओ, कंपेयर्ड टू द कोरोना टाइम्स नाउ, अभी कोई भी बच्चा इस तरह नहीं कर सकता. वो दुनिया के किसी भी मुल्क कोई नहीं बंदा जा सकता. अगर वो जाएगा तो उसके प्री रिक्विजिट्स ही बड़े अजीब से होंगे, यू नो. राइट. लाइक एक कॉलेज का ट्रिप मुझे नहीं भूलता. आई वेंट टू लाइक कायरो, और मेरे साथ 2 ओमानी लड़के थे और एक इंडियन लड़का था. एंड रैंडम हम 4 लोग जो हैं, वो किसी ट्रैवल एजेंट ने एक पेपर लगाया हुआ था हमारे कॉलेज में कि फलाने पैसों में आप लोगों को मैं 7 दिन का टूर करवाऊंगा और ये वो XYZ. एंड उसमें से कोई मुश्किल से 4 लोग माने थे पूरे कॉलेज में से. 4 बेवकूफ उसने घेर लिए थे, उनमें से एक मैं था. एंड मैं किसी तरह पैसे इकट्ठे करके मैं कायरो पहुंच गया. जब मैं कायरो पहुंचा तो अब हम ढूंढ रहे हैं उस एजेंट को कि यार वो एजेंट कहाँ है. पता चला उस एजेंट को इमिग्रेशन वालों ने जिधर से हमने एम्बार्क किया था वहीं धर लिया था. So we were in a brand new country without any agent and without any reservations, but we still managed it, you know, for like 7-8 days. हमने फिर भी manage किया जो हमारे return flight तक का time था. And we had such a great time, you know, and we became the best of friends. But now, you know, things are totally changed. चीजें बहुत अजीब हैं. तो yeah, so I mean, I'm glad I got to do this, you know, अपने करियर को लेके खास तौर पे. जी बिल्कुल. एंड आपकी ट्रांजिशन went quite quickly. जब आप पाकिस्तान आए, कितनी देर बाद आपको पहला अपना जॉब मिला या पहली अपनी मतलब? So I had looked, you know, बड़े क्या कहते हैं, वो नहीं होता एक रेजिमेंटल तरीके से कि यार जॉब चाहिए मुझे. मेरा माइंड वो था कि जॉब वाला ना. Right. So I was like, man, I need to get a job. And at that point, मेरा नहीं ख्याल कि लोग काम तो कर रहे थे, like all these guys, you know, जो बड़े-बड़े नाम है उस टाइम के, वो सारे लोग काम कर रहे थे. मगर I think मेरे अंदर एक जरा एक्स्ट्रा स्पार्क था या कोई बेचैनी थी जो मेरे जिन लोगों के सामने में जाता था वो कहते थे वाह यार ये एनर्जी चाहिए, ये बंदा ले आओ. तो रेडियो पे जब मैं जिस पहले रेडियो स्टेशन पे गया, उन्होंने थोड़ी मुझसे बात की. थोड़ा जरा वो होता है ना कि थोड़ा they play hard to get sometimes. Right. तो
मेरे जो बॉस थे उन्होंने फुल बड़े वो किया कि नहीं यार तुम अभी तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जो कि उन्होंने बाद में मुझे बताया कि यार मेरे दिल में लड्डू फूट रहे थे जब मुलाकात हुई तो खैर वो वेरी क्या कहते हैं, अगेन आई फील वेरी ब्लेस्ड कि बड़े जबरदस्त लोग थे एट रेडियो एक्टिव 96 एफएम, उधर की जो टीम थी उस टाइम पे। these guys got me on air and on air जाने के तकरीबन कुछ 6-8 अरसे बाद in Karachi there used to be MTV Pakistan, right. तो MTV Pakistan से कुछ लोग से मेरी दोस्ती हो गई। then people at Jio they started to look out for me क्योंकि मैं रेडियो पे था, कोई शक्ल वकल से जानता नहीं था, लेट नाइट शो होता था मेरा, तो वो that got famous एंड बस टेलीविजन की मुझे ऑफर्स आने लग गई एंड आई इवेंचुअली बिकेम अ वीजे, जो कि अगेन फॉर 23-24 year old guy if you're being on radio and television and that too both hip places, you get the best of both worlds basically. I think yeah, तो सारे जो मेरे like favorite stars like Ali Azmat and you know like Strings, पता नहीं कौन कौन जो पूरी जिंदगी मैंने देखा है, and I used to be like, what? I'm gonna be interviewing them. Yeah. It was just amazing. It was just amazing. मैं अभी भी सोचता हूँ, मैं कहता हूँ यार वाह यार बहुत अलग, बहुत मजा आया. It must have been exciting. तो आपकी शादी भी 2013 में हुई थी and you are married to Pakistani favorite very famous model Hira Tareen. तो उसके बारे में बताएं कि when did you meet her and what was that like? This was a couple of years later. I sort of बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे from the media. And again, Mikal Hassan is the person basically. From Mikal Hassan Band. ये बड़ा एक आपको ट्रिविया दे रहा हूँ मैं कि actually मिकाल ने दोस्ती करवाई थी मेरी और हिरा की. Yeah. So it was just that because एक musicians का एक अलग सर्कल है, तो वो कोई भी अगर कोई इस तरह का कोई एक्स्ट्रा किसी के अंदर टैलेंट होता है, जैसे हिरा is a DJ, you know, she's been DJing for the last, I mean, ever since she was 16. Wow. So she started off from V-Niles and then, you know, progressed slowly to more or less मेरी और हिरा की story almost the same थी. You know, कि studies complete की, पाकिस्तान आए, फिर चले गए, फिर वापस आए, and then there was always this connection with Pakistan and, you know, the want to do something in media. तो उसकी वजह से me and Hira met through Mikal Hassan. And but from that day till now, you know, we've been together and we have a beautiful baby girl now. Yeah. And yeah, she's mashallah 2.5. Oh. So yeah, so it's been mashallah great, you know, Allah ka shukr. And she's very successful YouTube. You know, she's got her own YouTube channel. Yeah. I mean, she's amazing at whatever she's done, mashallah. You know, she's really blessed as well. She's a great you know, actor. ऐसे projects या ऐसे characters उसको आमतौर पे मिलते हैं जो कि बड़े जबरदस्त किस्म के characters करती है वो. Like usually अभी पिछले साल तक तो उसको कारमा का नाम दिया हुआ था कि वो लोगों को सही करने के लिए ड्रामों में आ रही थी. तो you know, she's a great DJ, she's a great cook, housemaker, you know, homemaker जिसे कहते हैं, and then you know everything. तो कमाल बंदी. That's amazing, and it's very good because you're both artists and you're juggling, you know, the same type of career. Now, is that difficult for you to do because आप दोनों एक ही field में हैं, or is it easy? Sorry. It's okay. Sorry about that. So I think हर relation में, if you talk about relationships, you know, relationships में आपको balance रखना पड़ता है. और अगर आप काम की बात करें तो उसमें भी, काम में भी आपको अपनी life के साथ एक balance रखना पड़ता है. Right. तो हो जाता है. Yeah. मेरा ख्याल है आपको थोड़ा सा focus करना पड़ता है और हो जाती है चीज. कोई भी ऐसी चीज नहीं. I don't think कि इतना मुश्किल है. Especially when, you know, you have your family around you.
तो हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है. You know, luckily ना Muggles जो क्या कहते हैं नानी है या खाला वगैरह है, मेरा sister and mother, they're close by. तो ये कि हेल्प हो जाती you know हमें हेल्प हो जाती है definitely. तो लेट्स टॉक अबाउट आपका जो पहला ड्रामा था जहां से आपको मतलब सबसे ज्यादा फेम मिली थी ताकि की आएगी बारात. तो वो how did you fall into that? How did that come across? And it was a very funny show. And I loved it myself, and you got a chance to work with a legend, Bushra Ansari. So us I think everyone in that show was a legend. Yeah, like everyone, from Javed Sheikh to Samina Ahmed to Sabah Hamid to you know, Marina Khan, you know, Nadeem Beg, the director, all of the original Wasi Chaudhary, you know, so many other people like Asad Siddiqui. He's doing great these days. Urusa Siddiqui, Asad, Sana Askari, and then Naveen Makar, and you know, all like big names. So I think it's just, you know, वो कहते हैं ना कि आप अगर किसी चीज के लिए किसी चीज की तकदौ में लगे रहो तो कुदरत जो है ना वो आपको उन चीजों के सामने जरूर ले आती है एक ना एक बार. यू नो, लाइफ आपको जरूर एक बार चांस देती है. तो अगेन मैं उस टाइम पे वीजिंग वगैरह तो कर रहा था, ठीक है, बट हमारा बड़ा एक नीश था एज कम्पेयर टू जो पाकिस्तानी पॉपुलेशन है. वीजिंग वगैरह या फिर जो यूथ को सेंट्रिक कंटेंट था वो उस टाइम पे बड़ा एक नीश था. यू नो, ब्रॉडर ऑडियंसेस नहीं देखती थी. ड्रामा हैज ऑलवेज बीन फॉर द ब्रॉडर ऑडियंसेस, लाइक मासेस के लिए. तो यू नो, एट दैट पॉइंट एक ऑडिशन का मुझे पता चला था जो कि बेसिकली फॉर द सेकंड सीजन होने वाला था ऑफ आजर की आएगी बारात. बेसिकली ये एक रमजान सीरियल जिसे सुनो चंदा वगैरह अभी हो रहा है, उस टाइम पे जियो ने आजर की आएगी बारात के नाम से कुछ 7-8 एपिसोड का एक सीरियल, मिनी सीरियल बनाया. वो हो गया हिट. अब उनको बनाना था अगला सीजन जो कि था डॉली की आएगी बारात. ड्रामों के like it's a traditional like शादी is the biggest topic I think in Desi. Everywhere. It's like everywhere. I mean, but yeah, so it's crazy. It's crazy, you know. I mean, आप जितना as much as आप इस चीज को कहो कि यार बड़ा redundant idea है, but I mean it sells. पता नहीं क्यों इतनी समझ आती. People love to, you know, get dressed up and eat food and be happy for other people in Pakistan. तो खैर उस टाइम पे किसी ने मुझे कहा कि यार ये उस शो के बेसिकली जो क्या एसोसिएट डायरेक्टर थी उनसे मेरी मुलाकात हुई. और वो भी क्योंकि उस शो से जो रिलेटेड उस शो में जो 2-3 लोग थे वो मेरे दोस्त थे, जैसे राहिल भट्ट. He was a friend of mine through radio and television as well. वो भी डीजे था और वो भी रेडियो वगैरह कर रहा था. तो उसने मुझे बताया कि यार इस तरह ऑडिशंस हो रहे हैं सफीना, तो आई थिंक यू शुड आल्सो गिव सम ऑडिशन, यू नो, क्या पता तेरा सीन हो जाए. तो इसी तरह की बात हुई एंड मैं ऑडिशंस के लिए गया. जब मैं ऑडिशंस के लिए गया तो तकरीबन मोर और लेस मेरा यही हुलिया था उस टाइम पे. लिटरली कि यूं ही बाल बड़े हुए थे, मूंछ दाढ़ी थी, मगर बहुत पतला था उस टाइम पे और भी ज्यादा शायद पतला था. तो मैं उधर गया तो सामने नदीम बेग, मरीना खान वगैरह ये वो और बुशरा अंसारी नजर आए. So I was like, oh God, bro, ये तो तूने मुझे बताना था कि ये लोग हैं इधर. मैं तो सोच रहा था मेरे लिए तो एक म्यूजिक चैनल का क्राउड बिल्कुल अलग होता है, बट ड्रामा क्राउड इज टोटली डिफरेंट, यू नो. So मुझे ये इस तरह पता चला and I went in over there, gave the audition, बड़ा काम पे और मुझे पता चल गया कुछ देर बाद के like उसी दिन मुझे पता चल गया कि you got the role and I was like what, I got the role. बहुत भला यार, but मुझे करना क्या है. तो उस टाइम पे ये नहीं पता था कि मुझे करना क्या है, मेरा कैरेक्टर क्या होगा, मगर मुझे ये पता था कि अच्छा I've been selected for something. मैं उस टाइम पे शुक्र अदा ये कर रहा था कि यार शुक्र है अल्लाह में कुछ तो है, जो भी है ठीक है, मैं खुश हूँ, यू नो. मेरा वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, मेरा एक्सपीरियंस होगा, यू नो, दिस इज गोना बी अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी. एंड उसके अंदर मेरे फर्स्ट सीजन लाइक सेकंड सीजन के अंदर मेरा डेब्यू था डॉली की आएगी बारात में. और मेरे कोई 40 सीन्स थे, 40-45 किस्म के सीन्स होंगे. उसके अंदर वो
for some reason लोगों को पसंद आया, and producers thought कि ये boy side character नहीं इसका होना चाहिए, इसको main character बनाते हैं. And that's how the season 3 was made, which was on Take, my character, basically. तो वहां से फिर चल right. सिलसिला शुरू हो गया. Snowballed from there. Yeah. What was it like for you though? Like, were you obviously you must have been nervous, and working with इतने बड़े-बड़े नामों के साथ काम करना and Every time. जिनको आप से देख रहे हैं. How did you get a hold of yourself, or were you what were you feeling at the time? मेरे जितने पता नहीं आई थिंक मेरे इर्द गिर्द आजकल मैंने जितने लोगों के साथ काम किया सब इतने अच्छे लोग मुझे मिले हैं, कमाल लोग मुझे मिले हैं, और हमेशा लोगों ने सपोर्ट किया है, यू नो. और मुझे एक बार याद है बुशरा अंसारी के सामने मैं एक सीन कर रहा था, अपने आप में बड़ा कॉन्फिडेंट होकर कर रहा था, लेकिन बीच में कहीं मुझे नर्वसनेस हो गई. उन्होंने कहीं जुमला घुमा के कोई मुझे दिया और मुझे याद है मुझे पसीने आ रहे हैं ना, तो उन्हें बड़े प्यार से आके उनको शायद पता चल गया था कि मेरे साथ कुछ हो रहा है ना, मुझे नर्वसनेस हो रही है. तो she came up to me and she went like कि बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, शाबाश, बहुत जबरदस्त, शाबाश, ऐसे ही करते. इतने प्यारे तरीके से उन्होंने मुझे बोला कि मेरी नर्वसनेस उस वक्त जो है ना वो खत्म हो गई. लाइक मुझे आई फेल्ट एट होम, आई फेल्ट हर टू बी लाइक अ वेरी मदरली पर्सन, यू नो. एंड इसी तरह मुझे जावेद साहब के साथ काम किया. लाइक उस टाइम पे मैंने काम किया था, और अभी रिसेंटली मैंने काम किया लास्ट नवंबर में जावेद शेख के साथ. अभी एक फिल्म के लिए हम लोगों ने साथ काम किया है. तो यू नो इट्स जस्ट अमेजिंग मैन, ऑल दीज गाइज, ये जो सीनियर्स हैं जिनको अल्लाह मियां ने इतनी इज्जत दी हुई है, वो किसी वजह से इज्जत दी हुई है, क्योंकि दीज गाइज आर अमेजिंग पीपल. तो या सो मैं तो अल्लाह का शुक्र ही अदा करता हूँ, लोगों का शुक्र अदा करता हूँ कि यार आप लोग सारे बड़े अच्छे लोग मिल गए मुझे. No, absolutely. And मैं भी 80s की बच्ची हूँ, like I was young. अब मेरी उम्र का आपको पता चल जाएगा. But I saw like for me, somebody like Bushra Ansari, उस वक्त में like I would love to talk to her one day. I hope I really get to. लेकिन I think for a woman to have that courage कह लें, हिम्मत कह लें, to come on screen and just be so comical and so open, I thought that was amazing. Looking at her as a child. And I think Pakistani society as on the whole, जब आर्टिस्ट की हम बात करें तो हमारे आर्टिस्ट तो हमेशा से प्रोग्रेसिव रहे हैं बहुत ज्यादा. ठीक है, they've been out there ever since the 70s. या आप देखें कि 50s मेरा ख्याल 80s में बनता था. ठीक है, तो उस टाइम पे अगर ये आप उस टाइम के ड्रामास देख लें, या उस टाइम का वो जो 50-50 शो था कॉमेडी को लेके, उसमें आप देखिए क्या जबरदस्त कैरेक्टर्स और कितने मजे से ये लोग करते थे सारे. एंड प्लस हम बुशरा आपा की बात कर रहे हैं या बाकी लोगों की अगर हम बात करें, तो इन लोगों ने तो खैर उससे भी पहली उम्र में, like 16 when they were 16 or maybe 15-16, they started like working professionally on radio or maybe television. तो ग्रूमिंग बहुत फायदा करती है, एक्सपीरियंस ऑब्वियसली बहुत फायदा करता है. एंड अच्छे लोग जो कि जिन्होंने अदब पढ़ा हुआ था, लिटरेचर पढ़ा हुआ था, जुबान बहुत अच्छी थी, बात करने का तरीका सबका बड़ा अच्छा था, पर्सनालिटीज वर वेल पुट टुगेदर, तो वो सारी चीजों का तो जाहिर सी बात है हमारे लेजेंड्स को फायदा है. तो फ्यूचर आपने अपनी बेगम के साथ भी काम किया है, तो 2012 में. What was the first time you guys worked together? और उसमें मतलब it was so hard, so embarrassing for me, क्योंकि वो था ना कि we were dating actually at that point. हमारी शादी होने वाली थी, तो मैंने कहा यार ये क्या यार, वर्क प्लेस पे आ गए, अब डायरेक्टर से भी डांटे पड़ रही हैं और नर्वस भी हो रहा हूँ, और ये क्या हो रहा है. तो वो एक्सपीरियंस इस तरह मुझे याद है. लेकिन now when you think of it again, we landed in a Khalil Rahman Qamar script, Okay, आजकल आपको पता है he's in the news for all the wrong reasons. Back in the day, उनका सीन यही था कि उनकी स्क्रिप्ट हमेशा की तरह बड़ी जबरदस्त थी. एंड उनका एक ड्रामा था मंजली, वो किया था, तो उस सेट पे हम लोग साथ थे. फिर उसके बाद हमने एक सिटकॉम भी किया. फिर हम जिस वजह से हमारी ज्यादा दोस्ती थी, डीजे, फिर एक नेटवर्क स्टार्ट किया जिसका नाम है पाकिस्तान डीजे नेटवर्क. वो उस पे हम लोगों ने बड़ा काम किया, इवेंट्स वगैरह पुट टुगेदर किए. फिर ऑन एंड ऑफ आजकल वो अपना क्या कहते हैं, यूट्यूब
चैनल पे मेरा बहुत बिजी है, तो ऑन एंड ऑफ आई एम आल्सो appearing on her channel, sometimes in her videos. Nice. No, I saw a couple of them. It's a very good chemistry, obviously, you guys have. And it's that कि वो love marriage की कहानी मुझे बड़ी पसंद आती है, क्योंकि हमारे पुराने जमाने में तो होता था कि you don't even see each other, arranged marriages, and मेरी बहन ने बड़ी मजे की बात बस अम्मी ने देख लिया, बस ठीक है। अम्मी ने देख लिया, बस ठीक है। Don't do arranged marriages, gambling is haram. हाँ बिल्कुल। मजे की बात ये है कि you won't believe it, in this time as well there are people जो कि arranged marriages में believe करते हैं और बड़ा खुश हैं। like मेरा अपना ही भाई, छोटा भाई, he is like वो अपनी इसी तरह आला तालीम मुकम्मल करने के बाद जब वापस घर पहुंचा तो उसने नौकरी वोकरी स्टार्ट कर दी, काम शाम करना स्टार्ट कर दिया, और फिर जब शादी का वक्त आया घर वालों ने पूछा हाँ भाई बताओ कोई है पसंद तो तुम्हारे रिश्ते की बात करें, तो भाई ने मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं माँ जी, जिधर आप कहेंगी वहीं कर लेंगे। तो आज माशाल्लाह उसको 3 साल हो चुके हैं, 3-4 साल उसकी शादी को हो चुके हैं। It's no different than आप आजकल की dating sites देख लें or anything like that. It's pretty much the same idea. So I think at the end of the day, people have to work it out. Be it love marriage or arranged marriage, is the same. I agree. It's just कि जो कुछ जरा जमाती लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं हम तो अपनी मर्जी से करेंगे, जो जरा ठंडे लोग होते हैं वो कहते हैं यार मैं अपनी मर्जी से करूं या किसी की मर्जी से कोई फर्क तो पड़ता नहीं, होना तो वही है जो सबके साथ arranged marriage हो या you can meet a people exactly तो शादी का लड्डू जिस तरह वो कहते हैं ना कि शादी का लड्डू खाए जो खाए वो भी बचता है, जो ना खाए वो भी बचता है। So again, let's get back to the topic of शादी. It's such a big topic in dramas, and I know मैं अपने घर में देखती हूँ, मेरे हर ड्रामे में शादी हो चुकी है माशाल्लाह। शादी होती है, घर के मसले मसाइल, किसी सास बहू के this that and the other. Have you seen an evolution or a change in the topics though? Like आप 2011 में जाहिर है 2010 2011 में at that time ये सारे ड्रामे थे। देखिए मैं आपको बताता हूँ चेंज ड्रामे का as far as like evolving extramarital affairs, या तो शादी हो जाती है या शादी के बाद की कहानी होती है। ठीक है, या तो शादी तक की कहानी होगी या शादी होने के बाद की कहानी होगी। शादी के बाद की कहानी के डायनामिक्स बदल जाएंगे, उसमें जो हीरो हीरोइन है थोड़ी सी शायद मैच्योर उम्र की तरफ चले जाएंगे। शादी से पहले तक वो लड़का लड़की की कहानी रहेगी। ठीक है, और कुछ ड्रामे ऐसे हैं जो कि दोनों साइड्स दिखाते हैं। तो आई फील कि अब जिस तरह नेटफ्लिक्स आ चुका है या अमेज़न प्राइम है या फिर मूवीज हैं, अब अलग पैरेलल सिनेमा पड़ोसी मुल्क से बहुत पॉपुलर हो चुका है या वो वाले सब्जेक्ट्स, तो नैरेटिव आहिस्ता आहिस्ता करके चेंज हो रहा है। बट अगेन आई स्टिल फील के हमें फिर भी थोड़ा सा अच्छा और लिखने की जरूरत है। ड्रामास का जो यानी मयार हमारे पास था, नॉट सेइंग कि अभी भी बहुत बुरा है, ठीक है, अच्छा है, मगर उसको और बेहतर होने की गुंजाइश है। अच्छा नए दौर का लिखने की गुंजाइश है बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास अपनी स्टोरीज बहुत सारी हैं। तो अगर हम रस्मी चीजों से जरा निकलें और जरा देखें कि चीजें किस तरह अनफोल्ड हो रही हैं हमारे इर्द गिर्द, तो हमारी कहानियां और भी मजेदार हो जाएंगी। And आप काफी versatile actor हैं, आप कॉमेडी भी करते हैं, सीरियस रोल्स भी करते हैं। So what type of things are you looking to see? Like आप खुद क्या देखना चाहते हैं? Like topics wise, as far as what would you like to work on that you haven't been able to work on yet? देखिए आई फील कि सोशल इश्यूज के ऊपर अभी तक मैंने कोई ड्रामा एज सच किया नहीं है। ठीक है, ड्रग एडिक्शन एक ऐसी चीज है जो कि लोगों को तबाह कर चुकी है, पता नहीं कितने घरों को तबाह कर चुकी है। और वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में ज्यादा लोग काम नहीं करना चाहते, पता नहीं फॉर सम रीजन, कि ड्रग्स के हम ये जो चमक दमक की जिंदगी है उसके अंदर बहुत सारे लोग जो है वो एक डिप्रेशन का शिकार है, और वो डिप्रेशन तक का जो सफर है या उसका जो रास्ता है उसके अंदर बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हो चुकी हैं जिसमें आई फील कि मेंटल हेल्थ के बारे में काम होना चाहिए, ड्रग एडिक्शन के बारे में काम होना चाहिए,
काम ऐसी कहानियों के बारे में होना चाहिए जो कि स्पोर्ट्समैन है, मिसाल के तौर पे हमारे अपने देखिए हम आर्मी एयरफोर्स टाइप फिल्म्स बनाते हैं, ड्रामे बनाते हैं, बिल्कुल करते हैं। फिर हम बिजनेसमैन टाइप, डॉक्टर टाइप करियर्स वो दिखाते हैं। हम हाउसवाइफ्स दिखाते हैं। हम लेकिन हम इससे भी थोड़ा सा और भी आगे जा सकते हैं। हमारे लोग बड़े जबरदस्त हैं, बड़े डायनामिक पर्सनालिटीज के मालिक हैं। तो आई फील कि सोशल इश्यूज के ऊपर मुझे काम करना है, और कोई अच्छे स्क्रिप्ट आएगी तो मैं डेफिनेटली करूंगा। आपने खास बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मेंशन की है, मेंटल हेल्थ, जो हमारे कल्चर में नहीं उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। देखिए ना, वो इतना ट्रिकी सब्जेक्ट है ना कि आप किसी की टोन से कितना इफेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, उसके बारे में हमारा ड्रामा किस तरह करेगा, यानी हम उसको कैसे डील करेंगे, तो ये इस टाइप की चीजें हैं। मुझे ये दो चीजों पे तो जरूर काम करना है, एक मेंटल हेल्थ पे काम करना है, और एक मुझे ये ड्रग एडिक्शन, ड्रग प्रॉब्लम, सब्सटेंस अब्यूज, इस टाइप की चीज के ऊपर मुझे काम करना है। And then also like stories that, like for example, the addiction of a mobile phone, or just thinking कि यार मेरी जिंदगी को क्या हो गया, एकदम एक लम्हे के लिए अगर फोन बंद हो गया, तो दैट लम्हा, कि हर बंदे के दिमाग में उस एक लम्हे के अंदर पता नहीं कितनी कहानियां गुजरती है। As soon as your phone just dies, Yeah. So stuff of that sort. So I want to do some interesting stuff, जरा अलग किस्म की चीजें। तो देखिए कब मौका मिलता है। तो आर्ट इज ऑब्वियसली अ मीडियम जहां पर एजुकेट करना इज अ वेरी गुड टूल कि आप मतलब लोगों को एजुकेशन दें एंड सिखाएं ये चीजें। सो आई वुड लव टू सी यू टच दीज टॉपिक्स, क्योंकि ज्यादातर हमारे लोग, मैं समझती हूँ, डिनाइल में चले जाते हैं, लेकिन हम कई चीजों को टच नहीं करना चाहते, बात नहीं करना चाहते कि जी मेंटल हेल्थ हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो, ये हर चीज का टाइम होता है। देखिए अब नॉट सेइंग अगेन, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा। खलील रहमान कमर ने जिस तरह वो ड्रामा बनाया मेरे पास तुम हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में बात की, उस टाइम हम सबको पता है यार कि होते हैं लोगों की कहानियां होती हैं, लोगों की जिंदगियां बदलती हैं अलग अलग तरीके से। अब आप उसको अच्छा समझे या बुरा समझे, कहने का मतलब ये है कि ड्रामा तो रियलिटी को डिपिक्ट करेगा, और लोगों ने बड़ा राइटर को बुरा भला कहा और पता नहीं क्या क्या। लेकिन अब आप देखें इर्द गिर्द तो वही सारे मसले मसाइल नजर आ रहे हैं आपको। एंड बहुत फेमस जो आजकल न्यूज में खबरों में है, अर्तुगल ड्रामा, जो टर्किश ड्रामा था, उसके बारे में जो मतलब काफी बैकलैश पाकिस्तानी लोगों से आई थी कि मतलब there was a lot of criticisms and critiques put upon the actors and actresses. तो उसके बारे में what are your thoughts about that? यार देखिए, लोग मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ, जो फैंस होते हैं ना, वो ना अपने जिन लोगों को पसंद करते हैं उनके बुत बना लेते हैं। डोंट गेट मी रॉन्ग, उनके बुत बना लेते हैं। You're absolutely correct. उनके करीब आप जब उनके करीब जाते हैं ना, आप कोई ऐसी उनकी हरकत देखते हैं तो बुत टूट जाता है। वो जो मुजस्मा होता है ना, वो टूट जाता है। वो उसको जिस हाई पेडेस्टल पे आपने रखा होता है ना, वो आपकी अपनी वो होती है एक चीज। ठीक है, अब आपकी कोई भी चीज आपके फैन को अच्छी लग सकती है, कोई भी चीज बुरी लग सकती है। इट्स वेरी, क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव है बहुत। तो हाँ, सिली हमें लगेगी, जाहिर सी बात है। जो चीज मुझे नहीं बॉदर करी, मैं किसी और की देख के मैं यही कहूंगा ना, यार कितनी सिली बात है। इट्स जस्ट दैट कि जब ये अर्तुगरुल मेरा ख्याल बन रहा था 2014 2018 में, आई वाज रीडिंग समवेयर, it was actually going head on with Game of Thrones. एंड गेम ऑफ थ्रोन्स तो हर किसी ने देखा है, मगर गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में बात नहीं लोग करते थे, इतनी ज्यादा खुल के। तो अंटिल काफी अरसे बाद सब लोगों ने बात करना स्टार्ट कर दी कि यार सो ऑन एंड सो फोर्थ कि बहुत अच्छा है ये वो। तो आई डोंट नो, फैड है। लोग 4 दिन इसके बारे में बात करेंगे, फिर कुछ उसके बाद आ जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे, तो लोग तो करते रहेंगे। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बनाया था कि हम एक वो पेडेस्टल पर इंसान को लगा देते हैं, कि मतलब which is so ironic because हमारा मजहब सिखाता है कि मतलब ये बुत परस्ती and this it's just
it's so anti what we're Yeah. supposed to be, but as a we I mean, I'm not even talking in that reference, yeah कि मजहब की रोशनी में तो हम बात करें तो बहुत सारी चीजें ब्लैक और व्हाइट हो जाती है, yeah ठीक है, but मगर जब आर्ट्स की आप बात करते हैं, हाँ, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज की आप बात करते हैं, तो आपके पास बहुत सारे ग्रे एरिया आता है, बहुत सारे आपके पास जगह आती हैं, तो होता है, ये तो होता है रियल लाइफ में, मेरे साथ हुआ है yeah टू बी ऑनेस्ट, कि पाकिस्तान में ही it was just surprising, basically it's a surprise yeah कि मैं एक बार पता नहीं किसके बारे में था, बहुत सोचता था कि वाह यार फलाना तो ऐसे है, ये आई वोंट टेल यू द नेम, लेकिन कुछ अर्से बाद मेरी मुलाकात हो गई और जब मुलाकात हुई है तो बुट टूट गया था. yeah I was shattered. I was like, what? Mhm. This person is like this? Yeah. और हाँ, वो बड़ी जजमेंटल आप हरकत कर रहे होते हो अपने ही अंदर, और अगर वो मेरी जजमेंटल हरकत दुनिया के सामने आएगी, दुनिया हंसेगी, जाहिर सी बात है. Hey, my girl. Come here. Hey, say hi. You want to say hi? That's my girl. Oh, what a lovely surprise guest. Assalamu alaikum. Oh, mashallah. That's my girl. Mother, you want to say hello? Hello. You want to say hello? Say hello. Say I'm with Dada. No. Hey. I'm with Dada. No. No, you're not with Dada? I like her. Okay, chalo, I'll let you go. That's good. Okay. Okay, then keep quiet. Sorry. No, that's sorry. एक छोटी सी बात से पता चल जाता है what an independent girl she's gonna be, right? Oh yeah, of course, yeah. She has a mind of her own. Yeah, that's amazing. She's surrounded by strong women. Yeah. माशाल्लाह. तो इसकी खाला, इसकी पुप्पो, mother, नानी, दादी, ये सारी खवातीन अगर एक फ्रेम में आपको दिखा दूं तो आप लोग को So amazing. सही है. Yeah. Okay, Madhu. Come on. You want to go? Go. Yeah, sorry. Yes. That was a nice little surprise. So let's talk about current times now. Obviously, पूरी दुनिया kind of एक pause पर हुई है because of COVID. Industry भी आपकी वहाँ पर भी पूरी दुनिया में रुकी हुई है. Artists are not able to. Like, how are you guys coping with that? As far as it's terrible. It's terrible. Not even like एक होता है ना कि आपके पास एक सिस्टम इन प्लेस होता है और उस सिस्टम के साथ आपको चलना होता है. हमारे पास अनफॉर्चुनेटली पहले ही एक सिस्टम की कमी थी, ऊपर से कोविड की मेहरबानियों के बाद अब और ज्यादा मसले हो गए. तो टेक्नीशियंस क्या, स्टाइलिस्ट क्या, डिजाइनर्स क्या, एक्टर्स क्या, राइटर्स क्या, डायरेक्टर्स क्या, सबके सब बेचारे जो है परेशान है. So that's हम सबके लिए बड़ी एक परेशानी का टाइम है. But hopefully in the coming months we'll be able to do something, figure out something जिसमें काम भी होता रहे और हम लोग अपने आप को बचा भी सकें. Yeah. It's time to bond with family and kind of reconnect. So मैं समझती हूँ हर मुश्किल में एक opportunity होती है. So I guess we just have to look for those opportunities. I mean, you see, जब से लॉकडाउन हुआ है, टेलीविजन के ऊपर काम खत्म हुआ है, डिजिटल कंटेंट किस कदर बना है. Yes. ठीक है, दुनिया में डिजिटल कंटेंट जो है ना वो एक नेक्स्ट लेवल पे बनना स्टार्ट हुआ है. एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं देख रहा हूँ एंड आई एम लाइक वाओ, व्हाट अ ग्रेट एनर्जी, कमाल भाई, बहुत मजा आया. So and they're like normal people. So that altogether changes the landscape of entertainment in the coming time. Right. मैं तो बहुत अलग तरीके से अब देख रहा हूँ कि फ्यूचर जो है बड़ा जबरदस्त और डायनामिक होने वाला है. और ये जो अभी हमें लोग टिकटॉक पे और नजर आ रहे हैं. Ask you, are you on TikTok? भाई, I'm gonna follow you. I have to find you on TikTok. Actually, no, I'm not on TikTok. There's so many people, who've been like, I'm not on YouTube, I'm not on TikTok, I'm just on like मेरी digital जो एक life है वो बहुत limited है. ठीक है, I'm on Twitter.
on Instagram, although I've been like there for like 2012, but I just post like very limited stuff. But Twitter I use mostly, and I use Facebook. But Facebook पे भी मैंने कोई अपना fan club type page नहीं बनाया हुआ. You know, I just have like an old profile को 10-15 साल पुरानी जिस time पे बनाया था तो, you know. So I'm more of a mainstream sort of an artist. मुझे 10 साल हो गए थे रेडियो करते हुए, 10 साल होस्टिंग की, एक्टिंग को इतना टाइम हो गया. So I was like, अच्छा अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो I'll just hire a digital content company. You know, what's the need of me wasting so much time? You know, तस्वीरें लो, डालो, ये करो, वो करो. Just put out the content, followers खुद ही आ जाते हैं, right? हाँ, like content बना लेंगे या जो भी है. मैंने कहा mainstream इतना काम किया हुआ है, वो मेरा काम मैं उठा के digital पे डालूं. Doesn't make sense. But I feel very lucky. I've been, you know, like I got to work in a film in 2016, जो कि basically was specifically for YouTube. And that was a film जिसके अंदर you get to select your endings. So alternate endings पे ये film बनी हुई थी. Yes. So after every chapter, you'd get 2 options, and you'd get to select one option, और वहाँ से story आगे continue हो जाएगी. It's called कुछ कर गुजर. वही बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस था, you know. So I'm also like waiting on कि जब हमारी सब्सक्राइबर बेस जरा पाकिस्तान में बढ़ जाए, जरा और ज्यादा लोग इस्तेमाल करने लग जाए, तो maybe then, you know, I'll jump into the sphere as well. Yeah. So I'm a personal lover of comedy, and that would probably be my favorite genre of watching that. But what do you prefer? Do you prefer one role over the other, or one type of you know, genre over the other? Or is it everything like fulfilling for you? Sometimes it's like आजकल तो मैं कह रहा हूँ रोमांस मुझे करना है. मैंने नहीं किया. So what inspired that? Sorry, what? What's encouraging or inspiring you to do that? It's because it's something that लोगों ने मुझे देखा नहीं है उसमें, और शायद सोचते भी नहीं है. Right. So I was like, रोमांटिसिज्म भी थोड़ा सा दिखाना है लोगों को. थोड़ा क्या पता लोग एक अलग तरीके से देखना शुरू हो जाए, तो देखते हैं. वो है. फिर you know, sci-fi मुझे बड़ा अच्छा लगता है. Really? Yeah, I love sci-fi. Then I used to like thrillers, and you know, but I think I've sort of grown out of it now. Yeah. Or how about a negative role? A negative role. Would you be? हाँ, मुझे वो अच्छे लगते हैं. वो मैंने जैसे किया था ताबीर, वो 2017 में किया था हम टीवी के लिए. काफी मीन और नेगेटिव आदमी था. फिर एक था मैंने 2014 में कि 16 में अब कर मेरी रफूगिरी, एक नॉवल पे बेस्ड एक ड्रामा था, वो किया था. वो भी काफी वो था. बट टू बी ऑनेस्ट आई फील कि इतनी ज्यादा लेयर्स नहीं थी उन कैरेक्टर्स में, यू नो. लाइक अब जैसे जोकर है, वॉकिन फीनिक्स का जोकर, वो ठीक है, एक आपको पता है कि यार उसके साथ कोई गड़बड़ है, नेगेटिव स्ट्रीक है, मगर उसके अलावा भी उसकी जिंदगी के बहुत सारे पहलू हैं जो आपको नजर आ रहे हैं. तो आई फील कि वो प्रेफरेंसेस चेंज होती रहती हैं, डेफिनेटली चेंज होती हैं. हाँ, मगर आजकल मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं नेक्स्ट कोई प्रोजेक्ट करूँ तो उसमें मुझे एक अच्छा सुलझा हुआ रोमांटिक टाइप आदमी मिले तो मजा आएगा. Nice. So how about actors? Like, is there anybody Pakistani industry में जिनके साथ आपको काम करने का अभी तक मौका नहीं मिला? Somebody you want to work with or desire to collaborate with? Like, मुझे बड़ा शौक है कि मैं एक ही फ्रेम में हुमायूं सईद, फैसल कुरैशी, नुमान इजाज, इन लोगों के सामने आऊं. हम लोग एक ही फ्रेम में हो, एक ही डायलॉग हम लोगों को, यानी एक डायलॉग एक सीन में हो हम लोग बेसिकली. मुझे इन लोगों के साथ काम करना है, अपने जो सीनियर एक्टर्स हैं, मेल एक्टर्स हैं. इमरान अशरफ बड़ा अच्छा आजकल नाम है, उसका ही ड्रामा था ताबीर जो उसने लिखा. लेकिन मैं इमरान को यही कहता था, मैंने कहा इमरान तुमने मेरा और अपना सीन नहीं लिखा, तुम्हें इसका काम करना है, यू नो. तो मुझे वो है कि जो अच्छे एक्टर्स हैं उनके साथ काम करना है, जो बड़े बेहतरीन पक्का बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, उनके साथ करना है.
खवातीन में भी बहुत सारी इस तरह की हैं एक्टर एक्ट्रेसेस जिनके साथ काम करना है। तो देखते हैं अब ये कोरोना के बाद क्या सिचुएशन बनती है, टू बी ऑनेस्ट। मुझे लग रहा था कि 2020 is gonna be my year, but so far we've been just chilling in 2020. Inshallah, it's just I think as humanity we just needed a pause overall, just to reconnect with ourselves and अपने घरों को संभालना। वो कहते हैं ना, एक प्लान अल्लाह मियाँ का होता है, एक प्लान आपका होता है, ठीक है। तो इस वक्त तक अल्लाह मियाँ का जो प्लान है ना, वो भरपूर तरीके से कामयाब है। और कि हम लोग घर के अंदर बैठे हुए हैं, काम सारे के सारे फिर भी हो रहे हैं। It's a new reality. हमें परेशानी है हमारे हाथ में हो तो मेरा ख्याल इंसान जो है ना, सिर्फ इंसानों के हाथ में हो तो काफी खराब सिचुएशन है। And हम जो प्लान करते हैं वो बहुत like it doesn't usually turn out that way, right? Like हम सोचते हैं कि जी ये तरीका फॉलो करना है, इस तरह करना है। At least in my experience, मेरे एक्सपीरियंस में तो ऐसे बिल्कुल यही हुआ है कि मैंने जितने प्लान बनाए धरे के धरे रह गए यार। But that's good क्योंकि everything happens for a reason and हर एक चीज आपको एक स्टेपिंग स्टोन होता है, एक एक्सपीरियंस होता है जहाँ से आप ग्रो करते हैं, लर्न करते हैं, एंड देन अपने जो मुकाम होता है वहां पर पहुंचते हैं। आपकी जो कहानी है, it's so interesting क्योंकि it's very unexpected little steps that you took and it must be so nerve-wracking, लेकिन you have to just kind of conquer the fear. I think it was always एक तो ये था ना कि मुझे करना था, ठीक है। एक मगर ये भी था कि I was like कि I should say yes, I should treat people, I should love them and trust them, for them to work on me or with me, अगर कोई मुझे कहता है कि यार देखो ये स्क्रिप्ट अच्छी है, कर लो, तो मुझे ट्रस्ट करना चाहिए। अगर मुझे कोई कहता है कि यार देख मेरे पास पैसे कम है, कर ले काम, तो मुझे उससे प्यार करना चाहिए। मुझे ये नहीं करना चाहिए क्या कमीना आदमी पैसे नहीं दे रहा, काम नहीं करूंगा इसके साथ, तो आई थिंक ये दो चीजों ने ना मुझे जरा फायदा दिया है, क्योंकि अक्सर ऐसे कर लिया तो वो उसका रिटर्न मुझे अच्छा मिला। राइट And usually होता है कि मतलब I don't know who it was that said this quote कि when someone asks you if you know how to do something, you should say yes and then figure it out later. मतलब आप हाँ कर लो and then it's do it after. I necessarily don't agree with that क्योंकि अक्सर नालायक लोग जो है ना वो इसी तरह फिर वो हिस्सा बन जाते हैं और वो काम खराब कर देते हैं। हर demographic में like they just there's negative and positive, but you have to keep exactly. I actually do not believe in the saying कि fake it till you make it. I don't believe in that. Yeah, no, I don't believe in that either. For me, it is if you're fake, you're fake. Yeah, exactly. So you gotta be real. Yeah. But meaning like if somebody presents you with a challenge that maybe you're a little insecure, will I be able to do it? You have to kind of conquer that fear, right? To get ahead. Absolutely. Yeah. It's such a liberating, feeling as soon as you conquer your fear, or you conquer something that you thought that you might not be able to do. Yeah. I think वो सबसे कमाल चीज है और वही इर्तिका है, वही आपका progression है. Success is outside of your comfort zone, and you've clearly proven that. And आपकी कहानी इतनी interesting रही है, and it's been so nice talking to you. Thank you very much. No, and I follow आपकी बेगम को मैंने follow करना शुरू किया, so I'm sure you're going to be making cameos in her videos for sure as well. So, very nice. Good stuff. COVID के time में I think we'll find you on YouTube, and I'm sure you're doing other digital media stuff. And I hope so. I'm still not able to gather myself to be doing more of digital stuff. I'm still trying to work on a few of other things. So I'm just pretty much focused on my own, sort of goals. But yeah, you'd see me around anyway. Yeah. Oh, no doubt about it. So thank you so much, Ali. It was such a pleasure talking to you. So interesting chatting with you about all this stuff. And inshallah, we'll talk again soon. Thank you so much for being on the show. And thank you very much. Take care, stay safe. And thank you. Spend a lot of time with your cutie little daughter over there. Absolutely. Thank you very much for having me on your show. And this was great. Thank you so much. Thank you guys for watching. We'll be back again with another show soon.